Breaking news coming in. The Election Commission of India is all set to hold a nationwide press conference tomorrow regarding the Special Intensive Revision or the SIR exercise. The announcement will take place at Delhi's Vigyan Bhavan at around 4:15 p.m. And the SIR is likely to be declared across 10 to 15 states of the country. That's the latest that is coming in as far as the SIR is concerned. Remember, a lot of tussle around it. The Election Commission of India now expected to hold that press conference tomorrow at around 4:15 p.m. And declare in all likelihood SIR exercise in 10 to 15 states. This is expected to be in a phase-wise manner. Let me go across to Niyamika, my colleague, getting us more details of this. Niyamika, take us through the details. What can we expect? What we are getting to know is that the EC might now announce the SIR in a phase-wise manner across India. Indeed, we have seen that it was being planned and earlier also being hinted by the Election Commission of India, and now tomorrow there is going to be a big press conference which will be addressed by the Election Commission regarding the SIR exercise which is going to be done all across the country, as it is being expected to be announced that the rollout of SIR in 10 to 15 states, as we have seen that already the SIR was being conducted in the state of Bihar just ahead of the assembly elections, which was also being opposed by many of the political parties as well, especially if we talk about the opposition parties, as they are stating that this is an attack upon the constitution, this is an attack upon the democracy. On the other side, the Election Commission has repeatedly clarified that this is being done only for the revision of the voter roll, which needs to be done after several days, and that is the only reason why this entire exercise is going to be conducted All right, Niyamika, let me also go across to Congress's Rashid Alvi, who's joining me on the phone line. Mr. Alvi, what is your thought? What is your response to the EC, who's expected to announce an all-India SIR tomorrow? Yeah, we have been continuously opposing it. It is invented by Election Commission under the instructions and directions of Bharatiya Janata Party. More than 50 lakhs voters have been deleted before the election of the Bihar Assembly. And even that time I said it will be implemented in each and every state. Now they are going to implement it, and mostly Muslim voters, backward voters, and particularly those voters about whom BJP think they may go against Bharatiya Janata Party shall be deleted. It is absolutely against the soul of Constitution, and I can say SIR is nothing but an alternate to NRC, National Register of Citizens, and definitely when we say democracy is dying, there is no doubt about it. Okay. All right, Mr. Rashid Alvi, thank you very much. Even though the BJP continues to say that this is not against any community or religion, and it is only to weed out those people who are on the list illegally, the opposition, of course, continues to oppose the SIR. My colleague Gaurav Srivastav is also with me. Gaurav, we are expecting this press conference tomorrow. The Congress is saying that this is completely anti-constitution and anti-democracy. बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बता दूं, एक फॉर्मल इनविटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। 4:15 बजे के आसपास जो है वो विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के साथ बाकी दोनों कमिश्नर और पूरी चुनाव आयोग की टीम जो है वो मौजूद होगी। मैं अपने जवाब की शुरुआत जो है वो राशिद अल्वी के जवाब से करूंगा। पहला ये कि बिहार में लगभग 99.6% मतदाता जो हैं वो जो है उन्हें एसआईआर के तहत जोड़ा गया। तो इस तरह के आरोप लगाने की जो लोग भाजपा के विरुद्ध हैं उनके वोट काट दिए जाएंगे, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ राजनीतिक आरोप है और बिहार में भी हमने देखा कि किसी तरह का ये चुनावी मुद्दा नहीं है। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है वो उनके इलेक्टर से है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहेगा कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स मैक्सिमम हैं वो वोटर लिस्ट में आए एसआईआर के जरिए। ये इलेक्शन कमीशन इंडिया का एम है और यही वजह है कि इलेक्शन
कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर कराकर एक तरीके का आप देखें तो प्योरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट जो है वो करना चाहता है। जो अभी जानकारी मिल रही है सोर्सेज से, उसके मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तकरीबन 10 से 15 स्टेट्स में जो है वो एसआईआर को अनाउंसमेंट करेगा, जिनमें वो स्टेट्स हैं जहां पर 2026 की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने, जिनमें अगर आप शुरू करें नॉर्थ ईस्ट से तो असम का स्टेट है, साउथ में अगर बात करें तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है। इन राज्यों में जो है वो असेंबली इलेक्शन जो है वो शेड्यूल्ड है, तो उनको पर्याप्त समय मिल सके इस वजह से वहां पर एसआईआर का अनाउंसमेंट कल ही कर दिया जाएगा और ये जो एसआईआर का पूरा प्रोसेस है वो मिड वीक से शुरू भी हो सकता है। जो अभी तक जानकारी है, जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था, उसके मुताबिक 1 जनवरी 2026 की क्वालिफाइंग डेट जो है इस एसआईआर प्रोसेस के लिए रखी जाएगी, यानी कि वो लोग जो भारत के नागरिक हैं और उन्होंने 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र पूरी कर ली है, वो एसआईआर में वोटर लिस्ट के तहत अपना नाम नए वोटर के तौर पर जुड़वाने के लिए आ सकते हैं। लेकिन एक नई चीज देखने को ये मिलेगी कि स्टेट वाइज जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी जिसके आधार पर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, वो डिफर कर सकते है। मसलन अगर आप असम की बात देखें तो वहां पर अलग तरीके के लोकल डॉक्यूमेंट्स भी जो है लोगों को आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए जाते हैं। आप तमिलनाडु की बात करें, वहां पर फिशरमैन होते हैं, फिशरमैन के पास अपने लोकल आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, तो वो जो 11-12 वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने बिहार में देखी थी, उससे थोड़ा सा अलग लिस्ट जो है वो दिखाई दे सकती है। और यही वजह है कि 2 बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली के द्वारका में सारे सीईओज के साथ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की और इस बात को लेकर ही मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ कि आखिर कैसे एसआईआर को सक्सेसफुल बनाना है। उन राज्यों में मैं आपके पास लौटूंगी। अभी मेरे साथ फखरुल हसन चंद एसपी के जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। फखरुल हसन चंद, कल इलेक्शन कमीशन इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये डिक्लेयर करेंगी कि 10 से 15 स्टेट में एसआईआर रोल आउट हो गया। आपका रिस्पॉन्स? देखिए, एसआईआर को लेके देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला गया और जो चुनाव आयोग हैं उनके बहुत से फैसलों को देश की सबसे बड़ी अदालत ने पलटने का काम किया, बदलने का काम किया, संशोधन करने का काम किया। तो एसआईआर चुनाव आयोग कराना चाहता है तो पूरा विपक्ष भी तैयार है। हम सतर्क भी रहेंगे क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही भी कहा कि चुनाव आयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग बन गया है, तो पूरा विपक्ष वो सतर्क जरूर रहेगा। एसआईआर से एसआईआर हो रहा है, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी विपक्ष के किसी दल को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पूरी सतर्कता इस पे बरतेंगे। फखरुल हसन चंद मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ बीजेपी के आरपी सिंह भी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। मिस्टर सिंह, योर रिस्पॉन्स? ऑपोजिशन कह रही है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में आके एसआईआर पूरी कंट्री में कर रही है और ये पूरी तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक है। पर फखरुल हसन चंद साहब तो स्वागत कर रहे हैं, मैं तो उनके बयान का स्वागत करता हूं। जी, इससे पहले जब राशिद अलवी जुड़े थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बोला एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। एसआईआर वोट काटने के लिए हो रही है। How is it possible? It's going to be every state. There are parties which are opposition ruled states. Tamil Nadu, for example, West Bengal, where they will be all alert to ensure that nothing of this sort happen. But yes, SIR is important because only citizens should vote. Non-citizens who are not citizens of the country, they should have no right to vote. That's the process of SIR. And SIR is a normal process which is being done every 10 years. And if it's being done, everyone should welcome it. And for that regard, even Mr. Hassan is also welcoming it. And there are different voices in the opposition. But fact is, SIR is very important for the country, and court has stood by this. Court has already said yes, SIR should be done. Court has not given any order against the SIR. There were some technical or some processes on which the court raised questions, and election commission has already taken care of that. ओके, फखरुल हसन चंद जी, आप अपने आलाय कांग्रेस के साथ अग्री करते हैं कि ये जो एसआईआर है, कांग्रेस बोल रही है कि एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है? देखिए एसआईआर को लेके जो पूरा इंडिया गठबंधन का पक्ष है, हम उसके खिलाफ नहीं है। जो चाहते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम को जोड़ा गया, वोटर्स के नाम को काटा गया, तो पूरे देश में एसआईआर हो, एसआईआर पहले भी होते रहे कि कोई ऐसा नहीं कि नहीं होते। लेकिन जिस तरह से एसआईआर हो रही थी, उसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से संशोधन किया। हम विपक्ष के लोग सतर्क हैं, लेकिन ये पहले भी होता रहा है, इसलिए हम ये नहीं समझते कि ये कोई अलोकतांत्रिक है।
लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है उसकी पारदर्शिता पे, उनके काम करने के तरीकों पे जरूर सवाल है। तो विपक्ष सतर्क रहेगा। एफआईआर हो रहा है, एफआईआर की हम देखते रहेंगे कि उसमें जो कोई खामियां होंगी तो समय समय पर उठाते रहेंगे। ठीक है। Fakrul Hasan Chanji and RP Singh ji, thank you very much to both of you for joining us on Times Now. Of course, this will continue, viewers, and we'll keep getting you more details of what the EC says. Tomorrow is that big press conference that we are expecting at 4:15 p.m. Moving